मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि भले ही छोटे से शुरुआत करो, बट बड़े सपने देखो, वो मायने रखता है। People like me who want to start a new business. So what are like the first few steps? Because मैं जो पढ़ती हूँ नेट पे वो ये कहते हैं कि अपना SWOT analysis करो, strength, weakness, opportunity, threat, थोड़ा market feasibility study करो और जानो कि क्या तुम्हारे competitors हैं, etc. Customers को जानो. I want to know from you, what are the first few essential steps जो कि हमें करने ही चाहिए जब हम अपना नया business खड़ा करने का सोचें? सिंपल है, बेसिकली व्हेनेवर वी प्लान फॉर बिजनेस, जनरली लोगों के पास एक ही आंसर होता है, सर मुझे भी करना है बट पैसा नहीं है। एक कॉमन आंसर है लोगों का। और दूसरा, मेरे पास काफी अच्छा आइडिया है बट सपोर्ट नहीं है किसी का। Differentiating factors with those startups that really grow and flourish and take off versus those startups that disappear within the first 2-3 years. तो क्या ऐसी चीजें, 2-3 चीजें हैं जो differentiate करती हैं इन startups को? कम से कम 1,70,000 स्टार्टअप गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है। I see. और इट्स अ बिग अचीवमेंट। Yeah. और 1,70,000 स्टार्टअप को गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। उस प्लेटफॉर्म पे उन लोगों को पूरा फंडिंग स्कीम्स अवेलेबल है, ग्रांट्स अवेलेबल है, नेटवर्किंग कनेक्शंस अवेलेबल है। मान लो 100 रुपए लोन लिया आपने तो 35 रुपीज माफ किए जाते हैं अगर वो महिला उद्योजक है। बिजनेस करने के लिए जो लोगों को लगता है कि पैसा नहीं है, भाई ऐसा नहीं बोलता, गलत बोल रहे। पैसा मार्केट में है, हमको लेना आना चाहिए। Every other day, a new idea lights up my mind, and I think about starting my own business and growing it. And I know for sure that I'm not alone, and there are many other people who also want to start their own business. But the question is that why do some startups soar and take off while others just fade away? What does it take to build, to sustain, and to grow a startup in India's vibrant yet volatile startup ecosystem? In today's podcast, we dive deep into all these questions. Today, we have a conversation with Professor Guru Raj, who is a distinguished entrepreneurship and innovation mentor. Professor Guru Raj is the head of Starter, Innovation and Incubation Cell at PIBM Pune. He has mentored over 65 plus startups in our country across different sectors from food, retail to edutech. He's the author of 18 plus management books, and his work has significant impact in the startup ecosystem of India. So let's welcome Professor Guru Raj on our show today. Hi sir, welcome to the show. Thank you so much for joining us today. Yeah, very good morning and warm welcome from my side also. Thank you, sir. So, sir, this is a very interesting topic, and I am personally very much interested in business and new like startups because हर दूसरे दिन मैं ये सोचती हूँ कि एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए एंड मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आज का पॉडकास्ट वो सारे क्वेश्चंस जो कि न्यू बिजनेस रिलेटेड है उनको हम आंसर करेंगे एंड Absolutely. yeah, so before we begin, can you give a very brief introduction about yourself to all our viewers today? Yeah, why not? Why not? I basically belong to Pune, Maharashtra, India, where I work as a management professional and simultaneously I work for some startup ecosystem in terms of Government of India, Government of Maharashtra, some top-notch institutions in country, and contributing to develop the ecosystem through which we can create more job providers than job seekers. That is what we need. Absolutely, so rightly said. Welcome again. तो सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी इवॉल्व हुआ है बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जियो पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं एंड मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी पढ़ी थी फोर्ब्स में जो कहती है कि majority of the startups, like 90% of the startups, they fade away in the first 5 years. And एक मैंने डेटा भी देखा था कि लास्ट 2 years में 28,000 स्टार्टअप्स जो है वो बंद हो गए तो काफ़ी चेंजेस आए हैं बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके अनुसार बिकॉज यू आर अ मेंटर टू 65 प्लस स्टार्टअप्स, आपने इतना काम इस स्पेस में किया है, तो हाउ इज द स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ इंडिया राइट नाउ? Yeah, right now the ecosystem is quite good. Right now, people also understanding the importance of very important term that is self-reliance. अच्छा. Now, considering the international market, economic pressures, it's quite essential for any company, Yeah. any country Yeah. to become self-reliant.
राइट। और सेल्फ रिलायंट बनने के लिए मुझे लगता है कि खुद के बिजनेस मायने रखते हैं, बिकॉज आपका डिपेंडेंस बाहर की कंट्री या बाहर के लोगों के ऊपर कम हो जाता है। अब वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो नेचुरली बिजनेस इज द ओनली वे, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि बड़ा नौकर होने से अच्छा है कि छोटा मालिक बनो। वाओ। मालिक मालिक होता है। और लोगों को चाहिए पैसा, फ्रैंक स्पीकिंग, ऑल ह्यूमन आर सेल्फिश, आई बिलीव इन दिस, बट वो सेल्फिशनेस का वेपन बना सकते हो और उसी वेपन से आप बिजनेस कर सकते हो। लेकिन लोगों की सोच थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी और गवर्नमेंट राइट नाउ इसके ऊपर काफी काम कर रहा है। 2016 they started one policy in India, Startup India. Along with that, there are multiple schemes they introduce so that an ecosystem can be developed. और उसका बेनिफिट आज ये है कि टायर 2 टायर 3 सिटीज जो इंडिया के है जी। उससे ज्यादा स्टार्टअप आ रहे हैं, जो कि अचीवमेंट रही है। आज स्टूडेंट कम्युनिटी सोच रही है कि जॉब के साथ साथ मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ, राइट। और वो करना लाजमी है। सही में। उसके साथ गवर्नमेंट सपोर्ट दे रहे हैं उनको, फंडिंग, नेटवर्किंग, मेंटरिंग, मल्टीपल एवेन्यूज। सो इट्स गुड, एक्चुअली इट्स अ प्रोग्रेस थिंग। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि ऑलमोस्ट 18 लाख लोगों को जॉब मिली है। वाओ। ओके। तो 18 लाख फैमिली चल रही है बिकॉज ऑफ दिस इकोसिस्टम। सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट। एब्सोल्युटली। या आपने बहुत अच्छा एक बात कही कि खुद का काम करना चाहिए, एंड आई ऑल्सो बिलीव कि अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहिए, राइट? अपने में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड लाइक आई सेड, ऐसा आइडिया आता रहता है मेरे माइंड में कि कुछ चलो बिजनेस करते हैं, बट जब मैं सोचती हूँ ना कि बिजनेस का आइडिया क्या होना चाहिए, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं मेरे माइंड में ये ख्याल आता है कि क्या ऐसा एक यूनिक आइडिया होना चाहिए जो कि मार्केट में है ही नहीं, या फिर आइडिया जो ऑलरेडी है कॉपी कैट एंड उसी को ही बेटर एग्जीक्यूट करें। तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि अकॉर्डिंग टू यू कौन सा ऐसा मतलब आइडिया, शुड इट बी यूनिक और इट्स ओके टू हैव लाइक अ कॉपी कैट आइडिया? व्हाट डू यू थिंक? मुझे ऐसा लगता है कि आइडिया कॉपी कैट हो या नया हो, उससे बेहतर है उसका एग्जीक्यूशन कैसे करता है। अच्छा। बिकॉज जब गूगल बना, फेसबुक बना, तो दे आर नॉट द ओनली इन द मार्केट, देयर आर विद देम आल्सो, बट इनका एग्जीक्यूशन स्ट्रांग था, तो उन्होंने ऐसे तो एग्जीक्यूट। तो आइडिया कॉपी करके लो, यूनिक दिखा लीजिए, डजंट मैटर। आपका पैशन क्या है, आप किस तरीके से लोगों तक पहुंचते हो, लोग कैसे समझते हैं आपको, राइट। दैट मैटर्स। सो मैं जनरली लोगों को वही बोलता हूँ कि आइडिया आपका कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा होटल भी अच्छा काम कर सकता है अगर वो उसका एग्जीक्यूशन अलग रखे, राइट। लोग उसको याद रखते हैं। राइट। So uniqueness is a different thing, but I believe excellence in execution is important. Amazing. That matters. Yeah. That's a great statement Yeah. that you made. तो सर, जब आइडिया हमारे पास आ गया, हमने एक आइडिया चूज कर लिया है, एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर ऑल people like me who want to start a new business. So what are like the first few steps? Because मैं जो पढ़ती हूँ नेट पे वो ये कहते हैं कि अपना SWOT analysis करो, strength, weakness, opportunity, threat, थोड़ा market feasibility study करो और जानो कि क्या तुम्हारे competitors हैं, etc. customers को जानो. I want to know from you, what are the first few essential steps जो कि हमें करने ही चाहिए जब हम अपना नया business खड़ा करने का सोचें तो? सिंपल है, बेसिकली whenever we plan for business, जनरली लोगों के पास एक ही आंसर होता है, सर मुझे भी करना है बट पैसा नहीं है। हाँ। एक कॉमन आंसर है लोगों का। और दूसरा, मेरे पास काफी अच्छा आइडिया है बट सपोर्ट नहीं है किसी का, एग्जैक्टली, बिकॉज देयर आर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे कैरी करनी होती है। तो जनरली हम उनको ऐसा बोलते हैं कि मेक योर ड्रीम एज योर पैशन, और जो आप मन में सोच सकते हो वो हासिल भी कर सकते हो। वेरी सिंपल। लोग थोड़ा डरते हैं
क्योंकि उनको लगता है कि थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ बट मैं ऐसा बोलता हूँ कि संघर्ष अभी करो, हाँ जीत तो भारी होगी, राइट बट उसके लिए संघर्ष थोड़ा सा करना पड़ता है। हाँ और कंसर्न क्या होता है यहाँ पे, अगर मुझे बिजनेस करना है तो सबसे पहले आप काम कीजिए, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या निकाल रहे हो। बेसिकली फिलहाल मैं अगर जाता हूँ रोड पे तो वहां पे क्या इश्यू चल रहे हैं, हम्म अगर वो आइसैक मुझे में आ जाता है तो आई कैन इजीली फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स कि या ये जगह यहाँ पे ऐसे हो सकता है, हम्म ये यहाँ पे चेंज हो सकता है, बट हम सोच के छोड़ देते हैं उसको। राइट कैन वी मेक इट कमर्शलाइज, कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, खाली आई नीड टू अंडरस्टैंड कि वो समस्या क्या है, वो समस्या कितनी बड़ी है। अच्छा, उस समस्या के अगर मैं हल निकालता हूँ तो क्या उस हल का मैं पैसा निकाल सकता हूँ, क्या पैसा कमा सकता हूँ। अगर पैसा कमा सकता हूँ तो क्या उस पे काम करने के लिए मेरे पास उतना अच्छा टीम है या मुझे अकेले काम करना है। राइट अगर मैं इसको सोचता हूँ, मान लीजिए मेरे पास टीम नहीं है, सो आई कैन कोलैबोरेट, आई कैन आस्क पीपल टू ज्वाइन। Yeah. इट्स वेरी इजी राइट नाउ। हम्म देयर आर एन नंबर ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म्स, networking platforms, clubs. I can join, I can interact, I can ask, कि this is what I'm going to solve. Let's join hand together. और इतना हो सकता है, हम कर सकते हैं, बट ये करने के लिए चाहिए जज्बा। और जज्बा अगर हम में है तो हम कभी एक्सक्यूज पे ध्यान नहीं देते राइट एक्चुअली। या तो आई थिंक हम कर सकते हैं कुछ भी। मैं ऐसे बोलता हूँ कि भले ही छोटे से शुरुआत करो, बट बड़े सपने देखो, वो मायने लगता है। वाओ वेरी राइट एंड वो पहला कदम लेना बहुत जरूरी है ना, काफी लोग जरूरी है। खुद को ही रोक लेते हैं पहले कदम पे ही। आप- आपने पैसे की बात करी राइट, कि पैसा भी तो चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आई वांट टू नो लाइक अबाउट फंडिंग, यू नो क्या क्या माध्यम है जिससे लोग अपना पैसा फंडिंग उठा सकते हैं, और किस किस पॉइंट पे फंडिंग के लिए यू नो यू शुड स्टार्ट रीचिंग आउट, एंड कहाँ व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे यू कैन रीच आउट। एंड गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर आप स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि आपने बहुत काम किया है महाराष्ट्र में, तो क्या है, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या कुछ ऐसा है न्यू बिजनेस यू नो ओनर्स के लिए? यस, सबसे पहले फिलहाल जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 10 साल से उन्होंने जो काम किया है भारत में, दैट इज अमेजिंग। इसका आउटपुट ये है कि आज के डेट में कम से कम 1,70,000 स्टार्टअप गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है, आई सी और इट्स अ बिग अचीवमेंट। या और 1,70,000 स्टार्टअप को गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। उस प्लेटफॉर्म पे उन लोगों को पूरा फंडिंग स्कीम्स अवेलेबल है, ग्रांट्स अवेलेबल है, नेटवर्किंग कनेक्शंस अवेलेबल है, इनकम टैक्स एग्जाम्पशंस ऑफर किया गया है, लेबर टर्नओवर टैक्स एग्जाम्पशंस ऑफर किया गया है, इंटरनेशनल नेटवर्किंग कनेक्ट करके दिया है। बहुत सारा फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफर करता है। इसके साथ साथ मान लीजिए मुझे छोटा बिजनेस करना है 10-15 लाख रुपए का, या तो वो भी पैसा गवर्नमेंट आपको देता है ग्रांट्स पे। ओके यानी आप पैसा ले लीजिए, उस पर काम कीजिए, अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है इट्स गुड, नहीं सक्सेसफुल होता है तो देर इज नो नीड टू रिफंड। ओके अब ये फैसिलिटी ऑफर की गई है। मान लो मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा एक्सपांड करना है, तो वहाँ पे सब्सिडाइज लोन अवेलेबल है। और उसमें एक अच्छी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है, दे आर प्रमोटिंग वुमन एंटरप्रेन्योर्स। वाओ नाइस उन्होंने, इट्स रियली गुड, बिकॉज अगर एक महिला पढ़ती है, सीखती है, बिजनेस करती है, तो पूरा फैमिली चेंज हो जाता है। तो नेचुरली वी हैव टू एम्पावर वुमेन मोर। और यहाँ पे गवर्नमेंट इज विलिंग टू प्रमोट मोर वुमेन एम्पावरमेंट इन टर्म्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। इसलिए उन्होंने, मान लो 100 रुपए लोन लिया आपने, तो 35 रुपीज माफ किए जाते हैं अगर वो महिला उद्योजक है तो। अच्छा दैट्स अमेजिंग That's या amazing. या बट प्रॉब्लम है कि लोगों को पता नहीं है। सो
by such podcasts, we can reach maximum people. At least people can get inspiration from such things. So that's why I need to appreciate you first. Because being a woman entrepreneur, you are also promoting such kind of things. Yeah. That's amazing. Absolutely. I mean, these are the kind of stories I want to put out there and information also, right? कि और लोग सीखे क्योंकि महिलाओं में मतलब मैंने अपना ही उदाहरण ले लूँ तो मुझे ही काफी बार ऐसा लगता है कि खुद का कुछ करो बट इतना नॉलेज नहीं है इतना नहीं पता चलता तो मेरे लिए भी ये काफी इंस्पिरेशनल है और थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा Sure. मान लीजिए एक कोई महिला है रूरल सेक्टर में रहती है या अर्बन सेक्टर रहती है डजंट मैटर मिनिमम 8वीं पास भी है 8th स्टैंडर्ड शी इज एलिजिबल अच्छा तो मतलब एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफिकेशन का कोई बार नहीं है बात नहीं है इफ शी इज वुमन शी विलिंग टू स्टार्ट समथिंग ए सिंपल बिजनेस ब्यूटी पार्लर शी वांट टू स्टार्ट वेरी सिंपल या सिलाई मशीन का बिजनेस करना है स्टिचिंग करना है कुछ भी बट शी नीड अ सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मशीन लेना है या बिजनेस चालू करने के लिए पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट करता है अप टू 25 लाख इफ इट इज अ सर्विस बिजनेस ओके इफ इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइक अचार बनना है अगरबत्ती बनानी है छोटा बिजनेस बात कर रहा हूँ मैं Right. बड़ा नहीं बोल रहा हूँ अप टू 50 लाख वाओ तो अमेजिंग लिया जाता है Yeah. अब सवाल ये आता है कि महिला अगर बोलती है कि मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है बट मुझे सीखना है तो गवर्नमेंट उनके लिए ट्रेनिंग अरेंज करता है 8 दिन से लेके 28 दिन तक वाला फ्री में विद रेजिडेंशियल फैसिलिटी विद फूड एंड अदर अरेंजमेंट्स ट्रेनिंग देके उनको तैयार किया जाएगा और देन उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा विद 35% सब्सिडी वाओ तो इट्स अ गुड चांस टू स्टार्ट ये- तो सर ये कौन सा पोर्टल है जहाँ पे आपको अगर पता हो कोई इंफॉर्मेशन देयर आर एन नंबर ऑफ पोर्टल्स बट दो अच्छी स्कीम्स जो चल रही भारत में दैट इज पीएमईजीपी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एंड फॉर स्टेट वाइज दैट इज चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम अगेन देयर इज अनदर स्कीम स्टैंड अप इंडिया ओके जो एससी एसटी कास्ट के लिए डायरेक्ट फंड्स ऑफर करती है देन देयर आर स्मॉल वेंडर्स जो होते हैं जैसे हॉकर होता है सब्जी वाला हॉकर होता है छोटे लेवल पे व्यवसाय करने वाले या उनको मुद्रा स्कीम दिया है गवर्नमेंट ने सो दे कैन गेट अ फंड ऑफ 10 लाख रुपीज उनका थोड़ा बिजनेस बड़ा करने के लिए सो देयर आर एन नंबर ऑफ स्कीम्स विच आर अवेलेबल मान लो मुझे फूड सेक्टर में कुछ करना है जी तो फूड सेक्टर के लिए अलग से ग्रांट्स है लोन्स अवेलेबल है और छोटे इंटरेस्ट रेट पे मिलता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि बिजनेस करने के लिए पहले 3-4 साल 5 साल आपको स्टेबलाइज लगते हैं राइट तो ज्यादा फोकस मत ज्यादा प्रेशर मत दो इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है बार बार ताकि वो करे अच्छे से अब मान लीजिए कोई महिला बिजनेस करती है और पैसा मिलाना चालू कर देती है तो नेचुरली फैमिली स्टेबलाइज हो जाती है ना एब्सोल्युटली एक सपोर्ट सिस्टम हो जाता है एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है या आने वाली जनरेशन अच्छी हो जाती है मल्टी बेनिफिट्स एब्सोल्युटली सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव आई मस्ट से या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस बहुत ही इनक्रेडिबल इंसाइट्स हैं एंड आई रियली होप कि आपने जो पोर्टल्स के बारे में बात किया लोग जाकर इनके बारे में और पढ़े मैं डिस्क्रिप्शन Yes. बॉक्स में भी इनका Yes, लिंक yes. लगा दूंगी ऑल्सो वन क्वेश्चन दैट कम्स टू माई माइंड नाउ इज अबाउट मार्केटिंग तो हम अपना जब प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसकी मार्केटिंग आई बिलीव कितना शिफ्ट हो गया है राइट पहले लाइक इन द लास्ट फ्यू इयर्स मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी है उसमें काफ़ी शिफ्ट हो गया है अभी ऑब्वियसली सोशल मीडिया लोग कितना यूज़ कर रहे हैं तो इसके बारे में बताइए कि हाउ हैव द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग हैव दे रिमेन द सेम और हैव दे चेंज्ड या फिर क्या क्या चेंजेस आ गए हैं अभी Yeah. The foundation of marketing is always same, but approach has been changed because approach of customer as well as marketers दोनों का भी चेंज हुआ है. Just take our example. अभी हम कुछ भी परचेस करने से पहले ऑनलाइन देखते हैं राइट क्या अवेलेबल है. एक मुझे मूवी देखना है तो पहले रिव्यू देखता हूँ मैं हाँ क्या कमेंट है लोगों के. But this is possible because of all facilities are available in terms of marketing.
मुझे पहले ही पता चलता है बाय द रिव्यूज ऑफ अदर, बाय द criticism by other, multiple things, and it applies to all marketing principles. Right now, with the use of technology, marketing is more personalized. Yeah. आज मुझे ये पता है कि मेरा कस्टमर क्या सोच रहा है और क्या ले सकता है. How I can make that customer delighted so that customer can become loyal to me. Yeah. So marketing is shifting right now to omni-channel, from traditional background to omni-channel backgrounds. And this channel makes easy for customers also and marketers also to get connected. Absolutely. And it's a big transformation from material to machine to humans. We are transforming, we are evolving, and it's a good sign. Yeah, great. Sir, also another question that comes to my mind, like business से related ही जब अपना नया business हमने start करा है, तो स्केल करना बिजनेस को किस पॉइंट पे हमें स्केल करने का सोचना चाहिए? मतलब सपोज मैंने अगर एक अपना रेस्टोरेंट खोला है, या इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस फूड सेक्टर, तो किस पॉइंट पे मुझे सोचना चाहिए कि ठीक है, नाउ आई कैन गेट इनटू अनदर एक और चेन खोल देते हैं, एक और आउटलेट खोल देते हैं सेम लोकेशन में, या फिर डोमेस्टिक अगर वी गो टू अनदर प्लेस विद इन इंडिया, तो क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि चेक होने चाहिए जिसके पॉइंट पे हम सोच सकते हैं कि ठीक है, नाउ वी कैन एक्सपैंड और थिंक ऑफ एक्सपेंशन? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है इसमें. एक क्वेश्चन मायने रखता हूँ मैं, आपने पूछा मुझे. अच्छा. बिकॉज व्हेन स्टार्टअप्स चालू हो जाते हैं, उनके दिमाग में चीज घूमती रहती है और वो जाते हैं जनरली प्री मैच्योर स्केलिंग पे. और मोस्ट डेंजरस पार्ट यहाँ होता है. प्री मैच्योर स्केलिंग समटाइम्स क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द बिजनेस. ओके. तो उसका एक टाइम स्पैन होना चाहिए. एक सिंपल सवाल मैं पूछता हूँ, कोई भी स्टार्टअप जब अपना प्रोडक्ट मार्केट में डालता है, सो दे बिफोर स्केलिंग दे सपोज टू चेक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, प्रोडक्ट मार्केट फिट. ओके. प्रोडक्ट मार्केट फिट सिंपल वर्ड है. एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैंने पेन मार्केट में लॉन्च किया है, और लॉन्च करने के बाद अगर मैंने सच में जाकर कस्टमर से पूछा, एक सिंपल एग्जाम्पल, कि अगर कल ये पेन मार्केट में ना रहे तो क्या आप मुझे मिस करेंगे? इस पेन को मिस करेंगे या दूसरा पेन आराम से ले लेंगे? राइट. तो ये फीचर बोलता है आपको whether customers are using this pen considering nice to have या must to have. If answer is must to have, means they are going to miss you. और अगर वो miss to आता है, means आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल है. आई सी. यानी लोग आपको याद करेंगे. And that is the right time to scale. But hardly startup understand this. उनको लगता है कि फंडिंग मिल गया मुझे, means I can scale immediately. Yeah. And which is absolute wrong. आपकी ग्रोथ ऑर्गेनिक होनी चाहिए. People should talk for you. अगर आपने कल एडवर्टाइज नहीं भी किया, still people should talk for you. And if they are doing this, it means you are having a organic growth. And that is the right time to scale again. ये स्केलिंग और एक चीज पे डिपेंड होता है कि ऑपरेशंस आप कैसे हैंडल करते हो. मान लीजिए फिलहाल मेरा रेस्टोरेंट है और वहां पर मैं 10 लोगों को सर्व कर सकता हूँ एट अ टाइम, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा और वैरायटी बढ़ाऊं राइट. और स्केलिंग करूं. या. मुझे साथ में देखना पड़ेगा क्या मेरा टीम कैपेबल है. क्या 10 के बजाय मेरे पास अचानक से 100 लोग आए हैं, तो क्या मैं उनको सर्विस दे सकता हूँ? क्या मुझे इतनी कैपेबिलिटी है? इफ इट इज अ टेक सपोर्ट सिस्टम, तो क्या मेरा वेबसाइट 10 टाइम्स कस्टमर हैंडल कर सकता है? 10x लोगों को मैं ऑफर कर सकता हूँ विदाउट टेक्निकल क्रैश, विदाउट टेक्निकल फेलियर. कैन आई ऑफर सिंगलेस सर्विस? अगर मैं दे सकता हूँ तो मैं सही राह पे हूँ. सेकंड चीज, अगर मेरा टीम मेंबर कोई छोड़ के जाता है, राइट. तो क्या नया रिक्रूट इजीली वो चीज समझ सकता है या उसको टाइम लगेगा? दूसरा, क्या मैं इजीली मैन पावर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ टू माय स्पेसिफिक रोल इफ इट इज वेल डिजाइन?
तो ये चीजें अगर सपोर्ट कर रही है देन आई थिंक यू कैन स्केल। वाओ, इम्पोर्टेंट है समझना। या आपने जो पैरामीटर्स बोले दे आर रियली on the point and pretty good information that you have shared with us. Sir, एक और चीज that comes to my mind is about innovation. You know, हमने कितने बड़े बड़े brands देखे हैं जो कि रातों रात disappear हो गए, and they say because they were not agile, they were not reading the market, उन्होंने innovate नहीं किया, वो अपने पुराने तरीकों के साथ ही चलते रहे, उन्होंने देखा ही नहीं कि market में क्या हुआ है. So I want to know from you कि आप अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल दें, आई डोंट नो, सम केस स्टडी और सम एनी न्यू बिजनेस दैट हैव रियली इनोवेट, दे हैव डन अ गुड जॉब इन इनोवेशन एंड हैव आर डूइंग वेल. सो अगर ऐसा अच्छा। कुछ है. ये कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ बिजनेसेस है Okay. जो अच्छा कर रहे हैं स्पेसिफिकली राइट नाउ। देखिए, मैं यहाँ पे किसी कंपनी को खराब नहीं बोलना चाहता, Absolutely. या क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। Mm. गूगल इज द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, Yeah. but what happened to Google Glass? Was it a success? No. That's the gut. So in spite of brand Google, ग्लास पे प्रमोट क्यों हुआ? बिकॉज शायद वो टाइम से पहले लॉन्च किया गया या लोगों ने सोचा नहीं था। तो कहने से मार्केट टाइमिंग मैटर्स, कस्टमर मैटर्स, कस्टमर साइकोलॉजी मैटर्स, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग मैटर्स, बहुत जरूरी है। Mhm. और जो ये स्टार्टअप करता है दे आर सक्सेसफुल, ऐसा मानता हूँ मैं। Mhm. Take example of Uber. Why Uber became successful when they started with this drivers app? Yeah. So लोगों को लगता है कि उबेर ने बिजनेस किया है, Mhm. बट वो बिजनेस वाज इनोवेशन ना। Yeah. किसी ने सोचा कि एक ऐप बनाएंगे जिसमें टैक्सीज कनेक्ट हो जाएंगे Exactly. एंड पीपल यूजिंग देयर फोन Yeah. कैन ट्रैक अ टैक्सी, Yeah. दे कैन बुक अ टैक्सी Yeah. एंड दे कैन गो विथ प्री assumptions of rate. Yeah. Was it innovation? Yes. So we have to understand the journey of creation, invention, innovation, and business. I think Uber is doing all this four. इसके साथ साथ उन्होंने ड्राइवर जॉब एक्सेसिबल किए टू ऑल, so there is no unemployment. Those who want to know how to drive, they can join Uber. Yeah. So ड्राइवर मार्केट बड़ा हो गया, यानी सोशल पॉइंट अच्छा हो गया, टेक्निकल पॉइंट अच्छा हो गया, बिजनेस पॉइंट अच्छा हो गया। So multiple examples we can take here. In India, take example of Zerodha, the brokerage. Yeah. उनका सबसे अच्छा खासियत क्या है? Zero brokerage pricing, and that was it. Second thing, the platform which they using, Kite. It's very convenient, user friendly, easy. I see. Third, they are making people train also, educating also by their app website. It's easy. So people think people are understanding, those who want to invest in share market, stock market, mutual funds, first time investors. Yeah. This is a good example that apart from business, they are developing society also. Mm. This matters. Yeah. Now the simplest example, right now WhatsApp, take example of WhatsApp. Yeah. Why WhatsApp is successful? Why? Because most easy to use, Mm. user friendly. Yeah. Any unliterate person can also use. Absolutely. Yeah. So can I say it's a good parameter to success? Yes. And that we have to understand. और मैं लोगों से यही बोलता हूँ हमेशा कि आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो सर्विस ऑफर करेंगे, उसको अच्छा बनाओ। अच्छा किस लिए? लोगों के लिए, ताकि लोग उसको याद रखें हमेशा। आज के डेट में अगर मैं बाहर जाता हूँ और मुझे गाड़ी बुक करनी है, तो आइदर आई विल गो फॉर ओला या उबेर। लेकिन who initiated? Uber initiated, Yeah. naturally. Yeah. So you can become a pioneer. Yeah. Even it's a simple business. Right. तो Great. चलता है, और मैं बोलता हूँ कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, Hmm. बस चलने का हौसला चाहिए। वाओ कितनी अच्छी लाइन बोली आपने, रास्ते खत्म नहीं होते, चलने का हौसला हौसला चाहिए, या और स्टार्टअप के लिए मायने रखता है ये चीज। एक और चीज जो मेरे माइंड में आ रही है, काफी लोग खुद से ही दे आर लाइक द सोलो
soul face, they want to go solo. But I want to know from you, आपके एक्सपीरियंस आपने कितने सारे स्टार्टअप्स देखे हैं, काम किए हैं उनके साथ, तो टीम का होना या फिर किसी के साथ स्टार्टअप स्टार्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर अकेला इंसान भी सक्सेसफुल हो सकता है क्या? हो सकता है, सब्जेक्ट टू आप डिस्कस किसके साथ करते हो. In my opinion, having the right mentorship, right networking, right discussion team matters success of high reputation. Simple as a great team with average idea can become successful, but a average team with excellent idea can be also successful. ये सोचना पड़ेगा. अच्छा. Actually. Right? Yeah. So मुझे ऐसा लगता है कि being individual, you can also think, but there are limitations. Yeah. आप because आपका वो डिस्कशन हो जाएगा. You can become a victim of myopia. हाँ. आपको लग रहा है इसलिए सही है, Right. या आप सोच रहे हैं इसलिए सही है. Yeah. It doesn't like this. Yeah. So you need to have a team which you can discuss. Yeah. That capable team, intellectual team, those who can understand the pain points, who can suggest, who can guide. So that can be a mentor, that can be a team, or that can be any counterpart with whom you work. Right. So minor at time, because discussions are very important. I think so. Yeah, very well said. Also, AI, AI is now practically everywhere. AI का ही अभी ज़माना है. काफ़ी कुछ चेंज हो गया है AI के आने से, like marketing approach change हो गई है. But when you start a new business, I want to know from you if you have seen any changes, success stories, or anything you want to share, because you are the expert in AI-driven consumer analytics, right? So, Absolutely. See, being a customer also, I have my own personalized thought to purchase. okay. Very simple. एक जमाना था कि जो मार्केट में आया है वही लेते थे हम लोग, Right. पर आज वैसा नहीं सोचता कस्टमर. ऐसा होता है कि मुझे थोड़ा अलग चाहिए. आई वॉन्ट सच थिंग्स. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट्स को सपोर्ट करता है टू अंडरस्टैंड कस्टमर एज ए इंडिविजुअल एंटिटी. आई कैन इजीली ट्रैक डाउन. वेरी सिंपल. मान लीजिए मैं 10,000 लोगों के साथ ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो बाय एआई आई कैन अंडरस्टैंड कि ये 10,000 सच में देख रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, Right. जस्ट वेस्टिंग माई मनी. सेकंड थिंग, उस 10,000 में से 500 लोग ऐसे हैं जो देखते हैं बट कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, और हो सकता है कि आगे वो कुछ देखे ना. तो क्या उनके लिए कुछ मैं ऐसा मैसेज कर सकता हूँ, मिस यू, expecting you, when you're willing to join with you, so that message is going to be a personalized message to them. Yeah. और वो बंदे को लगेगा यार कंपनी हैज कंसीडर्ड मी, Yeah. वो रिलेशनशिप बढ़ जाता है, एक अच्छा लगता है. सो फ्रॉम मार्केट टू ट्रस्ट मार्केटिंग चेंज हो जाता है अप्रोच. और जब ट्रस्ट मार्केटिंग बढ़ जाता है तो लोगों को अच्छा लगता है. लोग वांट टू गेट लॉयल. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको ये पूरा एनालिसिस मिल जाता है, एनालिटिक्स मिल जाता है. और सेकेंडरी आप उसका यूज कर सकते हो प्रिडिक्टिव बिहेवियर में, कि कस्टमर आगे क्या बिहेव कर सकता है. Yeah. So this is a useful weapon for marketing, management, and business. How you are using it, Yeah. how you are channelizing it, that matters. And that is supporting organizations to their further growth. ऐसा मानता हूँ मैं. Excellent. The point that you mentioned about trust marketing, मुझे भी ये लगता है कि personalized जब messages आते हैं, because in my memory I also remember few transactions that I have done with few businesses in the past, and उन्होंने personalized message भेजा. मुझे आज तक याद है कि हाँ, इसने मुझे personalized message भेजा था. अच्छा लगता है. हाँ, अच्छा लगता है. You feel special, and I think that clicks. तो सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपको टॉप 3 चीज़ें ऐसे बतानी हो, differentiating factors with those startups that really grow and flourish and take off versus those startups that disappear,
within the first 2-3 years. तो क्या ऐसी चीजें, 2-3 चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं स्टार्टअप्स को? फर्स्ट पैशन, हम्म, द टीम जो उस पे काम करता है, चाहे वो सोलो पर्सन हो या टीम हो, व्हाट पैशन दे आर हैविंग। बिकॉज मैं ऐसा बोलता हूँ कि पीपल विद पैशन कैन मेक डिफरेंस। yeah. वेरी सिंपल। You can take example of Mr. Steve Jobs. It was the passion. That's why we are observing Apple today. Yeah. Am I right? Instead of multiple struggles, Apple है आज. क्यों? Because it was a passion to make something different, best and unique. उन्होंने बनाया. Yeah. Execution part was different. They succeed. So any business, whether it is small or big, doesn't matter. आपका पैशन क्या काम करता है, आप उसको कैसे सोचते हो, इस पे काम होता है। Yeah. जनरली एक गलती यहाँ पे हो जाती है लोगों से, दे गेट ऑब्सेस्ड विद देयर कंसेप्ट्स। उनको प्यार हो जाता है कि मेरा है तो मैं थोड़ा ऐसे ही चूंगा, ऐसे ही करूंगा। हाँ. उससे बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? बिकॉज यहाँ पे एक ट्रैप हो जाता है, इमोशनल ट्रैप, और इमोशनल ट्रैप में लोग फंस जाते हैं, स्टार्टअप पीपल, कि उनको लगता है नहीं ऐसा ही करेंगे, वो ऐसा ही करेंगे। ऐसा नहीं होता है। दे सपोज टू अंडरस्टैंड इक्वल मार्केट। इन मार्केट में आप अकेले तो नहीं हो, बाकी लोग भी है, तो दे नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट एनवायरनमेंट ऑल्सो। और दूसरा, जो पैशन से वो काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट में आना चाहिए, बिकॉज योर प्रोडक्ट शुड बी बेस्ट फिट फॉर द मार्केट। एज आई सेड, अगर उसको आप डालते हो तो लोग आपको लेंगे ही लेंगे, या करेंगे ही करेंगे, और वो मायने रखता है स्पेसिफिकली। Right. तो इसमें मैं ऐसा बोलूंगा कि कुछ ऐसा काम करो कि आपकी पहचान बन जाए, और नाम ऐसा करो कि सुन के ही काम हो जाए। Amazing. या तो ये हो सकता है। इसलिए अगर आपका पैशन आपके साथ है, Yeah. आप मार्केट का स्टडी प्रॉपर करते हो, Yeah. प्रॉपर नेटवर्किंग करते हो, Yeah. प्रॉपर कोलैबोरेशन करते हो। Yeah. और मैं एक चीज यहाँ पे दोहराना चाहूंगा, आज की डेट में स्टार्टअप्स कोलैबोरेशन वे पे कम पड़ रहे हैं। क्यों कम पड़ रहे हैं? बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट अदर पीपल, या खुद का फायदा सोचते हैं ज्यादा। हाँ. इन माय ओपिनियन, अरे एक चीज और कम है तो लेट अदर टीम गेट इन्वॉल्व, मेक योर प्रोडक्ट बेस्ट। वो जो ट्रांजैक्शन होता है ना, उसमें प्रॉब्लम है, और अभी तक माइंडसेट लोगों का बना नहीं है कोलैबोरेटिव वर्क करने के लिए। क्यों बना नहीं है? बिकॉज हर कोई चाहता है कि अगर मैंने स्टार्टअप किया है तो मेरा बेटा ही उसका मालिक बने, हाँ. Right. मेरा एम्प्लॉय ना बने। ज्यादा लोगों को यही होता है. सारे समझ में। So this succession planning also is a problem. और सेम हैपेंस विद कोलैबोरेशंस। उनको लगता है मेरा प्रोडक्ट है, मेहनत दिए, दिमाग लगाया है, तो उनसे मतलब क्यों लूं मैं? ये प्रॉब्लम है। जब तक हम ये बॉर्डर तोड़ नहीं देते, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो मैं हमेशा लोगों को अपील करता हूँ कि इन द करंट मार्केट कोलैबोरेशन इज द की, और जिनको कोलैबोरेशन समझा, दे कैन लीड एंड रूल द मार्केट। ये होना चाहिए। इंटरेस्टिंग. एंड एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में है, विच इज अबाउट दिस मेक इन इंडिया थिंग. रिसेंटली कितना ज्यादा पुश है, एम्फेसिस है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, बिकॉज ऑफ द tax and all these things that have been coming from the US. So I want to know from you, आपने भी क्योंकि स्टार्टिंग में बोला था सेल्फ रिलायंट रहना चाहिए हमें, राइट, खुद ही सोचना चाहिए प्रोडक्शन के बारे में, ग्रोइंग थिंग्स इन इंडिया. सो और इसके बारे में थोड़ा, इफ यू वुड लाइक टू टच अपॉन. Why not? Why not? देखो अभी the same I was talking like collaborations. यहाँ पे सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं कि आप खुद ही सब कुछ करो, लेकिन खुद कर सकते हो, बट हर काम तो आप कर नहीं सकते ना। अगर हर काम करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो मैच हो जाएगा। तो इससे बेहतर क्या है, आइडेंटिफाई द कैपेसिटीज ऑफ पीपल, दोज हू वर्क विद यू and those who don't, we don't have. You get service from those people, those who are expertise in that. Make a group, start working together. Yeah. आपका सेल्फ रिलायंस हो जाता है। Yeah. अब इसमें सेल्फ रिलायंस में जरूर नहीं कि पूरे हर कोई बंदा भारत का ही हो,
You can connect with any person throughout the globe so that you can shine more or you can work more. Simultaneously, you are offering the platform to the people, those who want to join. Am I right? Yeah. तो ये चीजें होनी चाहिए. गवर्नमेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ गवर्नमेंट इज डूइंग बेस्ट. व्हाई? बिकॉज दे आर क्रिएटिंग द प्लेटफॉर्म्स. एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे. राइट नाउ गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी दैट entrepreneurship startups should be there in academics Okay. curriculum. Yeah, yeah. क्यों? बिकॉज हम लोग बचपन से बच्चों में एक ही चीज सिखाते हैं, बेटा अच्छा पढ़ाई करो और जॉब करो. हाँ. हाँ, सिंपल है. Yeah, yeah. जॉब अच्छा करेंगे, अच्छा सैलरी मिलेगा, हाँ. अच्छा सैलरी मिलेगा तो घर लेंगे, शादी करेंगे और सेटल हो जाएंगे. ऐसा क्यों नहीं पढ़ाते कभी बच्चों से हम लोग कि बेटा अच्छा पढ़ाई करो, दो चार बिजनेस करेंगे. हाँ. खुद का कुछ करेंगे. कुछ नहीं करेंगे. अगर वो बच्चा जाके कल घर में बोलता भी है कि मुझे बिजनेस करना है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट होगा उसके घर में ही. उसको पूछा जाएगा तुमसे होगा? हाँ. हमने कभी किया है? हमारे खानदान में किसी ने किया है? तो क्यों ऐसा भूत तुम्हारे दिमाग पे आया है? सवाल किए जाएंगे. यानी आप क्या कर रहे हो एज अ फैमिली? उस बच्चे के ऊपर इंटरेस्ट कर रहे हो जो सोचना चाहता है कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ. Am I right? So can I say, are we doing the right parenting here? Probably not. Because as a parent, sometimes we also think selfish Yeah. कि बिजनेस में थोड़ा स्ट्रगल है, भले ही किया ना हो, बट आपका मन बोलता है जॉब में थोड़ा अच्छा है, भले ही गाली खा के काम करेगा, फिट करने दो, पैसा मिल रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट स्टेबिलिटी है. रखेंगे. रिस्क नहीं चाहिए. हाँ. तो हम लोगों से ही बात करते हैं यहाँ पे, जब हम डिलीवर करते हैं कुछ लेक्चर, तो मैं हमेशा एक चीज हमेशा लोगों को बोलता हूँ, देखो पैसा सबके लिए चाहिए, पैसा कमाना जरूरी भी है, बट पैसे कमाने के लिए तरीके भी होते हैं. एक पहला तरीका होता है एक्टिव इनकम. व्हाट इज एक्टिव इनकम? अगर मैं जॉब करता हूँ किसी जगह पे, तो 9:30 से लेकर 7 बजे तक मैं काम करता हूँ, वो मेरा एक्टिव इनकम है. वो मैं जाऊंगा तब मिलेगा, नहीं गया नहीं मिलेगा. Then what is passive income? शाम को 7:30 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक जो मेरे पास टाइम है, क्या उसमें 1 घंटा दे सकता हूँ खुद के लिए? तो उस 1 घंटे में कुछ बिजनेस कर सकता हूँ. भले ही मैं छोटा बिजनेस करूँ, 10 रुपए मिले मुझे, बट 10 रुपए मुझे पैसे मिल रहे. जरूर नहीं कि मुझे बाद में वहां पर रुकना पड़े. एंड ऑल बिजनेसमैन all earning passive income, and all employees are earning active income. If an entrepreneur thought he should go for a vacation of 1 month, उसका बिजनेस चालू रहता है, बिकॉज चलाने के लिए एम्प्लॉय बैठा है, एक्टिव इनकम वाला, और पैसिव इनकम वाला एंजॉय कर रहा है लाइफ. तो पैसिव और एक्टिव क्या दोनों इनकम साथ में कमा सकते हैं हम लोग? यस. किस लिए कमा सकते हैं? बिकॉज जरूरी भी है. और दूसरा, आपने जो पढ़ाई की है यूज करो पैसे इनकम में. तो लोग बोलते हैं सर करना चाहते हैं, पैसा नहीं है. Yeah. आपस में आता हूँ, पैसा तो गवर्नमेंट दे रहा है. एक सिंपल है ना. अगर एक स्टूडेंट बिजनेस करना चाहता है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और उसको कुछ सोच, उसमें दिमाग में ऐसा चीज आया कि इस रूम में मेरे पास एक फैन है, वो फैन को 3 ब्लेड है, मैं चाहता हूँ कि इसमें एक ही ब्लेड रहे. ऐसा स्टूडेंट सोच रहा है, तो प्रेमाफसी लोग क्या बोलेंगे? ऐसा थोड़ी होता है, राइट? या जैसा चलता है वैसे चलने दो. प्रेमाफसी. लेकिन स्टूडेंट क्या सोच रहा है कि सर मैं अगर 2 प्लेट निकाल देता हूँ, हो सकता है लाइट कम कंजम्पशन हो, वेट कम हो जाए, उस मेटल का यूज के अंदर दूसरी जगह करेंगे हम लोग. और दूसरा, इससे फैन का स्पीड बढ़ेगा. और एक रूम में एक फैन काफी है, हो सकता है ना. बट हम क्या बोलते हैं, बेटा ऐसा होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. तो मेरा गवर्नमेंट क्या बोलता है इस केस में, बेटा आपको लग रहा है एक फैन पे एक मिनट पे चलेगा, तो गवर्नमेंट उस दरम्यान उस बच्चे को ऑफर कर रहा है आज के डेट में 10 लाख रुपए फॉर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट. वाओ. ओके. उसमें गवर्नमेंट बोलता है कि बीइंग अ स्टूडेंट कैन गेट अ ग्रांट ऑफ 10 लाख रुपीज to work on such innovative projects. इसका आउटकम होगा
एक तो प्लान अच्छे से बनेगा या फिर फेल हो जाएगा, हम्म, बट कोशिश तो की ना। हाँ, और कोशिश करते टाइम वो बच्चा अकेला तो काम करेगा नहीं, राइट, दो चार लोगों को साथ लेके आएगा, हाँ, तो धीरे धीरे सबका माइंडसेट बन जाता है या, क्या रे प्रोडक्ट सक्सेस करना है, उसमें पैशन आ जाता है। और अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो यू कैन बी द बिजनेसमैन। एग्जैक्टली, सेकंड थिंग, गवर्नमेंट इसको और प्रमोट कर रहा है कि बेटा आपने सोचा ना एक लड़का फैन हो सकता है, उसका पेटेंट करके देंगे आपको हम लोग। हाँ, पेटेंट का पूरा पैसा क्लोज टू 80% गवर्नमेंट रीइंबर्स करता है। वाओ, यानी कि 10 रुपए खर्चा भी करता हूँ मैं, हाँ, 8 रुपए मुझे वापस मिलते हैं, हम्म, 2 रुपए खर्चा हो रहा है। राइट, 2 रुपए वो ग्रांट से खर्चा कीजिए, खुद का पैसा मत खर्चा कीजिए। इन ऑल दिस केस यू विल गेट पेटेंट, वो पेटेंट बेच सकते हो, रॉयल्टी ले सकते हो, प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो बिजनेस कर सकते हो, और प्रोडक्ट फेल भी हो गया या, तो उसको मॉडिफाई कर सकते हो। राइट, तो इतना सब सपोर्ट हो रहा है, बट हम माइंडसेट नहीं चेंज कर रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स, mindset of teachers, mindset of students needs to get changed. yeah. We India can because shine. absolutely we need that support system, you Yes. know, for people to even think about starting their own business. Absolutely. Yeah. So finally, as a wrap up question, I want to know अगर ऐसा कोई advice है जो आप देना चाहते हैं, which is not common from your experience, for all the new, entrepreneurs who want to start their business, क्या बोलेंगे आप? Yes. This is a good question again. For those who don't want to start anything, and those who are already done, it is also going to support them. मैं हमेशा लोगों को बोलता चाहता हूँ कि शुरुआत करना जरूरी है। अगर आप शुरुआत करते हैं तो आप चलना चालू करते हो, चलना चालू करते हो तो दौड़ना भी जानते हैं आप। और एक बार दौड़ना चालू किया आपने तो कोई रोक नहीं सकता। Yeah. पर उसके लिए शुरुआत करनी पड़ती है, और शुरुआत कहाँ से भी हो सकती है। वेरी सिंपल। तो बिजनेस करने के लिए जो लोगों को लगता है कि पैसा नहीं है, भाई ऐसा नहीं बोलता, गलत बोल रहे। पैसा मार्केट में है, हमको लेना आना चाहिए। गवर्नमेंट आपको ग्रांट्स दे रहा है। स्टार्टअप इंडिया जो गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर 20 लाख रुपए तक की ग्रांट मिलती है। लाइसेंसिंग फ्री है, नेटवर्किंग फ्री है, मेंटोरिंग फ्री है, एग्जाम्पशंस अवेलेबल है, सीड कैपिटल दिया जा रहा है। IITs, IIMs या इंक्यूबेशन सेंटर्स भारत में ज्यादा हो रहे हैं। दे आर सपोर्टिंग विद देयर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, Yeah. मटेरियलिस्टिक कैपेसिटी। आपको प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, जस्ट आपको थोड़ा आगे जाना है, सोचना है। एन नंबर ऑफ हैकेथॉन्स, कॉम्पिटिशंस आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द विद सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, Yeah. जिसमें लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि आप सोल्यूशन दीजिए हमें, उस सोल्यूशन का हम काम करेंगे, आपके नाम पे पेटेंट निकाल के देंगे, आपको रॉयल्टी मिलेगा, पैसा मिलेगा, शेयर मिलेगा। बिजनेस करना है, आपको लोन देंगे, हमको ग्रांट्स देंगे, अरेंज करके देंगे। अगर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो हम एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन के माध्यम से आपको सपोर्ट करेंगे, Okay. आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा। बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, बट लोग अभी भी पुराने माइंडसेट पे ही दे रहे हैं कि मुझे सैलरी मिलेगी, मैं खुश रहूंगा, मेरा घर चलेगा। लेकिन वो कभी नहीं सोचते कि एक उम्र के बाद आपका एक्टिव इनकम सपोर्ट नहीं करेगा। अगर छोटा सा पेड़ आज मैंने लगा दिया पैसिव मोड पे, तो आगे जाके मुझे फल भी देगा, Yeah. फूल भी देगा और छांव भी देगा। फोटो लगाना चाहिए, और लगाने के लिए थोड़े एफर्ट करने पड़ते हैं। Yeah. Great. Thank you so much, sir. Thank you for joining. बहुत कुछ सीखा है मैंने personally, and I'm sure कितने सारे लोगों ने, especially women entrepreneurs ने भी काफी कुछ सीखा है आज आपके incredible insights से. So thank you so much for coming Yes. and sharing these Thank things you with so us. And I hope best of wishes to you also for such a great initiative to benefit people at large.
Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you so much for watching us till the end. I really hope that you found value in this conversation. Please do like, subscribe, share this with someone who needs to hear this, and comment and let us know what you liked about today's conversation. I always believe that we do not have to look far for inspiration because there are so many incredibly inspiring stories all around us. Because as they say, no one else sees the world the way you do, so no one else can tell the stories that you have. Thank you.